এখানে আপনার জন্য খবর, একটি দল সপ্তম অবস্থানে এবং অন্যটি অষ্টম অবস্থানে, কিন্তু দিল্লি একটি ম্যাচ কম খেলেছে বলে তাদের সেই অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে। बढ़िया बढ़िया। ये मोहित भाई, ये आपने पिछले मैच में पंजाब के सामने पंजाबी बोल के उनको फंसा दिया। उनका तो भाई लग गया, लेकिन पता नहीं इस बार केकेआर वालों का क्या हाल होने वाला है। लेकिन चलो बढ़िया, ये ट्रिक अच्छा है वैसे। Sachin, if बढ़िया है। this works, then I'm ready to speak every language in our every episode. But yes, hello everyone. I'm Mohit Bararia along with Sachin and Girish, two of our DC Toli members. And yes, I was just telling that Delhi is playing Kolkata in our next game, and both currently stand with 6 points. KKR being played a match more than Delhi, so that's an added advantage for Delhi over Kolkata. But there's a 20-second clip that we want to show to you. But Sachin, before going further, let's hear the opinion of some neutral fans और उनसे जानते हैं कि वो थर्ड डिलीवरी ऑफ लास्ट ओवर वाज अ नो बॉल और नॉट। नो बॉल तो थी यार, मतलब देनी चाहिए थी यार, कम ऑन। नो बॉल। नो बॉल थी यार, नो बॉल थी बिल्कुल। प्रीवियस मैच में दिल्ली के लिए तो दिल्ली ऑफ कोर्स जीत जाती। If we are talking about Delhi, so we can't just avoid this topic. Girish, you saw the video, you saw the match also. I just want to know your initial reactions after the no ball, because the match situation was super tense, and we know that umpires have that millisecond to take a final call, which might be questionable sometimes. Your thought on that? तो इनिशियली जब तीसरी बॉल हुई थी लास्ट ओवर की, मैं खुद काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि नो बॉल थी, सबको पता है नो बॉल थी, क्लियर दिख रहा था। लेकिन जो एम्पायर का डिसीजन था वो था, हम उसका अभी कुछ वी कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इस पे भी मैंने 3 पॉइंट्स सोचे थे इसके बारे में। फर्स्टली कि एम्पायरिंग स्टैंडर्ड इस आईपीएल के सीज़न में काफ़ी पुअर रहे हैं। ऐसा स्टैंडर्ड मैंने लास्ट टाइम आई थिंक 2019 के सीज़न में देखा था, जब सीएसके और आरआर का ही मैच था एंड धोनी स्टॉर्म्ड ऑनटू द ग्राउंड। लास्ट ओवर था उनका, दे नीडेड 8 रन्स टू विन। सीएसके वन द मैच, लेकिन नो बॉल दिया गया था एंड उसको ओवरटर्न कर दिया गया था फॉर सम रीज़न। Yes. सेकेंडली, एम्पायर्स डिसीजन लाइक आई सेड इज अ फाइनल डिसीजन। जो शेन वॉटसन ने कहा वो बिल्कुल सही है पोस्ट द मैच, कि चाहे कुछ भी हो, एम्पायर का जो डिसीजन है वो है, हम उसको ओवरटर्न नहीं कर सकते, ना ही हम उसका कुछ कर सकते हैं। व्हाट ही सेड। Yes. एंड लास्टली, जो भी हुआ उस लास्ट के ओवर में, इट हैपेंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। Yeah, ऋषभ I'm पंत ने जो totally एक्शंस agree. किए, जो ऋषभ पंत ने एक्शंस किए हैं, या फिर प्रवीण आमरे व्हेन ही स्टॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड, इट वाज ऑल इन हीट ऑफ द मोमेंट एंड इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। सो Yeah, या दैट्स माय टेक ऑन इट। yeah, I'm totally agree with Grace. बट हाँ, थोड़ा आगे जाने से पहले मैं मोहित भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रोमन पवेल, इनका बैटिंग पोजीशन, जैसे वो नंबर 3 से नंबर 8 तक सारे पोजीशन पे खेल चुके हैं, और अब दिल्ली के पास उतने मैचेस बचे नहीं है, तो क्या अभी भी वो एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, या उनका कोई अभी भी आइडियल पोजीशन, आपके हिसाब से उनका आइडियल बैटिंग पोजीशन क्या होना चाहिए? Yeah, Sachin, seriously, like this is the point I want to talk more and more about, because apart from openers, no one has their position fixed till now in this IPL, and it troubles a lot if you are not given a specific responsibility in a team. Talking about Rovman Powell, as you rightly said, he has been tested in every position from position 3 to 8. But what I feel is that Rovman Powell, there's no fixed situation and position for someone like Rovman Powell. He's actually like what Russell is to KKR. I think we need to give him at least 4-5 overs according to match situation, so that वो अपना थोड़ा इंजन गर्म करे, and then he takes off. I mean, these guys are like Sankat Mochan to our team. But if we talk about previous game, he should have come before Shardul to play those extra 3-4 balls, or even an over, so that I think that the result could have been different. But it is good that we have backed Roman Powell for 7 games, and at the last game he finally responded well. या ट्रू। बट हाँ, अगर हम पिछले मैच की बात करने बैठे हैं तो करते रह जाएंगे, तो हम थोड़ी मीम्स के साथ ही बात डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं पिछले मैच के कुछ मीम्स पे। ऋषभ पंत टू अंपायर, अंपायरिंग मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 में टीम बना लो। ये काफी सही था, मतलब जिस हिसाब से इस सीजन में अभी तक जो साधारण अंपायरिंग हुई है, उस हिसाब से बिल्कुल। ये होना भी चाहिए ऐसे। और खासकर आईपीएल एक काफी अच्छा लीग हो गया, एक
तो ऐसे लीग में थोड़ा अंपायरिंग का स्तर थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल भाई, मेरा बैट दे दो, मुझे खेलना ही नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ यार। ये यू नो these kind of situations seem funny from one point of view, but अगर उनके पॉइंट से देखें तो like you know they it came out of the heat in the moment, as Girish rightly mentioned, but these could have been avoided. Next देखते हैं। Yeah. So the Dream 11 Game Changer of the Match award goes to नितिन मेनन। ये मतलब हम क्या ही बोले इस पे, सबको पता है। लेकिन जहां तक मुझे मोहित भाई याद है, जो एक बार ऐसा 2019 के सीजन में हुआ था, वहां पे भी अंपायर नितिन मेनन ही थे, आई थिंक। बिल्कुल, जैसा जैसा गिरीश ने बोला that when Dhoni stormed into the ground, Nitin Menon was the same umpire in the ground. या शेन वॉटसन टू ऋषभ पंत, छोटी बच्ची हो क्या? But I feel that like you know Shane Watson was the most senior player and the coach in the dugout at that point of time, because Ricky Ponting was not present, and I think that because Watson ने कुछ पंत को जाके बोला, so he stopped for a moment. I think that was great from game's point of view, because we need some mentors in our life to just restrict us from doing something which could have been a of bad impact to others. जॉस बटलर सुपरमेशी, इस सीजन मैं किसी को ऑरेंज कैप के आस पास भी नहीं भटकने दूंगा, मैं ये अखंड प्रतिज्ञा लेता हूँ। ये मतलब जो जिस फॉर्म में बटलर चल रहे हैं अभी फिलहाल, तो जो मतलब इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगा चुके हैं वो। लेकिन बिल्कुल हाँ सही है, अच्छे जा रहे हैं ये। बिल्कुल, and he's halfway there to break Kohli's 950 plus runs जो उन्होंने IPL में बनाए थे एक सीजन में। He's halfway there, and we can see him break those records as well. But yes, that was all the fun part from our previous game. But coming on to our next game, which is against KKR, our arch rivals, and currently our partner in points table. But Sachin, would you like to start with some head to head? या ऑफ कोर्स मोहित भाई, अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं केकेआर की बात करें तो उन्होंने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पलड़ा भारी केकेआर का है, लेकिन अगर हम पिछले पिछले 9 मुकाबलों की बात कर लें तो वहाँ पे दिल्ली 6-3 से लीड कर रहा है। Oh और wow. इस सीजन तो हमें पता ही है कि एक मैच से हम ऑलरेडी लीड कर रहे हैं। Yes. हाँ लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है कि अगर हम डीसी का अगर हम देखें तो बैटिंग रन रेट सबसे ज्यादा डीसी का है। इस सीजन डीसी का बैटिंग रन रेट 9.3 है। वहीं केकेआर Oh. इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है 8.6 के, और हमारे पोजीशन के लास्ट पोजीशन पे है आरसीबी 8.1। बट ये तो रहा हेड टू हेड से, लेकिन हम चलते हैं गिरीश भाई के पास। तो गिरीश भाई आप कुछ हमको ग्राउंड स्टैट बता दो। तो मेरे पास भी कुछ स्टैट्स हैं। पहला तो ये है कि 160 एवरेज स्कोर रहा है इस आईपीएल के सीजन में वानखेड़े के स्टेडियम में। Hmm. दूसरा, जो लास्ट 22 गेम्स हुए हैं, T20 गेम्स इस वानखेड़े स्टेडियम में, उसमें से 14 गेम्स वो जीते हैं जो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, मतलब जो चेस कर रहे हैं। बिल्कुल। और लास्टली ये कि जो 9 मैचेस इस सीजन आईपीएल के हो चुके हैं वानखेड़े में, उसमें से फर्स्ट 4 जो वो जीते हैं जो बैटिंग दूसरी कर रहे थे, यानी कि सेकंड इनिंग्स में। एंड दिस इज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। इस पे काफ़ी इश्यूज रेज हुए थे, तो बीसीसीआई ने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द एंटी ड्यू स्प्रे, और ये भी अभी तब यूज कर रहे हैं व्हिच इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स और आवर्स बिफोर द मैच Yes, स्टार्ट्स। yes. तो ग्राउंड There's एकदम a slight न्यूट्रल change रहता in the है, timings. राइट। या तो ग्राउंड एकदम न्यूट्रल रहता है। एंड उसके बाद से हमने देखा है कि द नेक्स्ट 5 मैचेस हैव बीन वन बाय द टीम्स व्हिच आर डिफेंडिंग। Oh wow. या बढ़िया। तो हमारी हेड टू हेड की बात हो गई, ग्राउंड स्टैट की बात हो गई। अब हम चलते हैं स्टैट्स गुरु के पास। तो मोहित भाई कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप बता दो यार आप। Yeah, Sachin, one of my favorite matchup which I want to talk about is about our openers. One of which is David Warner. David Warner versus Kolkata is my favorite matchup for the upcoming game, because he has 4 IPL centuries, and out of 4, two IPL centuries have came against Kolkata Knight Riders, one for Delhi Daredevils and one for Sunrisers Hyderabad. His top score is against KKR.
his first IPL century is KKR, and I think the form in which he is and the expectations that her daughters have put in front of him, I feel he's nowhere far from another 100. And second matchup which I am looking forward to is Prithvi Shaw versus Shivam Mavi. We know what Shaw did to Mavi in previous season. In overall IPL, he has 41 runs in just 18 balls against Mavi. So yes, I'm pretty much excited for another run fest in Wankhede. बढ़िया बढ़िया मोहित भाई, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो, डेविड वार्नर के बल्ला चले और हम डेविड वार्नर का हमारे दोनों ओपनर के बल्ले चलें और धमाकेदार एक पावर प्ले देखने को मिले। तो हाँ, बस बिल्कुल। आज की एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ, जाने से पहले हमारे ऑडियंस के लिए दो लाइन दिल्ली कैपिटल्स के लिए। इरशाद। तो अर्ज किया है, सुर्खियों में हर तरफ दिल्ली के चर्चे हैं, सुर्खियों में हर तरफ दिल्ली के चर्चे हैं, हार के बावजूद मशहूर हमारे ही किस्से हैं। अब इसे चेतावनी समझो या चुनौती, ये कोलकाता तुम पे है। अब इसे चेतावनी समझो या चुनौती, कोलकाता तुम पे है। पर इतना समझ लेना कि जख्मी शेर न हद से ज्यादा खतरनाक है। धन्यवाद। क्या बात है। क्या बात है। तो बस आज के शो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए थैंक यू।